Hello and welcome. You're watching a special edition of Jab We Met. We are currently at Jamnagar. This is the Reliance Petrochemicals refinery. And with me is Anant Ambani. And that big guy is part of a project that Anant Ambani is trying to set up where they're rescuing all these animals who are in distress at circuses, at different places, and trying to give them a new life. Anant Ambani, welcome to Jab We Met. So Rahul, welcome. That's Gauri. Hi Gauri. She's one of our elephants we rescued. She's my first elephant we rescued. First elephant in 2008. She was 12 when we rescued her. Okay. From Rajasthan. She was walking in the streets begging for food with a Mahawat, and that's her Mahawat, Jagdish. Namaste Jagdish. He also came 20 years back. Wow. To this So facility. you call the elephant and the elephant comes out? Yes, I've learned the Mahawati language with the elephants. What are you trying to do, Anand? What are you trying to achieve here? So the Elephant Rescue Center is a center which is called the Radhakrishna Elephant Welfare Trust. Okay. A lot of elephants suffer in captivity, so we are trying to give them a place where they can live a dignified life. And we have rescued all these elephants from some trauma. What kind of trauma? Burnt foot pads, no molars, arthritis, fractured hips, road accidents. We've cured elephants with herpes virus, which is a virus which kills a lot of elephants. So we've rescued elephants from all across, mainly circus elephants, begging elephants, elephants used in parades, elephants used in the logging and timber industry, and we have also rescued elephants from Mahawats who can't afford keeping the elephant. Because, as you know, keeping an elephant is not an elephant eats 200 kilos a day. So now, just keep explaining what's happening around us. So there, if you can look, we are having an Ayurvedic massage for an elephant who's 72 years old. This is an old age home for elephants. Our average age of elephants here is about 55 to 60. For me personally, I'm a devout Ganesh Bhakt. Okay. In reality, we cannot see Lord Ganesh, but his avatar can be seen in elephants. So this is my tribute to Sri Lord Ganesh. This looks like some kind of an elephant jacuzzi. This is the first in the world. We designed it in-house. Hydrotherapy pond. It's a hydrotherapy pond. We have 260 high pressure jets. Okay. And it's a heated pool. Aja, Agat. They're currently too busy in their jacuzzi, so they don't want to come. They have protected barriers, but she is Rangmola. You can. Rangmola, Aja. Do they ever attack? Animals are animals, we try, but anything can happen. Have you ever been attacked by one of these guys? Not been attacked, but yes, while treating them, we have faced some situations. Does that sometimes scare you that ultimately they are wild and... So these are all wild animals, so we respect them. As you know, we have protected barriers, but she is Rangmola. Yes. She currently is wanting to go back to the jacuzzi, so she's leaving all the food. Oh. Like, let me do my thing in the Yes. water. Abhi apne ko disturb nahi karna hai. Yeah. I find it fascinating that you know the Mahut language. As a kid, I was fascinated with the Mahoti language. So I learned the Mahoti language back in 2008. तो थोड़ा बोल के सुनाइए Mahuti language. So, अगर आगे जाना है तो अगत बोलना है. हाँ. अगत. अगत. हाँ, okay. अगत. पीछू जाना है तो पिछू बोलना है. पीछू. और हाथी को अगर खड़ा रखना है तो धात बोलना है. धात. अगर हाथी को आपको भगाना है तो डेर अगट बोलना है. अलग-अलग. ये सब नहीं होगा. ये मुल्तानी मिट्टी जो हम जैसे हमारा स्पा ट्रीटमेंट है तो हफ्ते में 2 बार इनको मुल्तानी मिट्टी दिया जाता है. इनका हाथी का स्पा चल रहा है. हाथी का स्पा चल रहा है अभी. अरे बताओ, एक जगह हाथी का जकूजी चलता है, दूसरी जगह हाथी का स्पा चल रहा है. This is to kind of calm them. Because their skin is very rough. So in the wild also they find mud and sand of sand baths. So we're just mimicking the wild. मुल्तानी मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप यहाँ पे? पंजाब. और ये जो आपको रबर मैट दिख रहा है हर एक एंक्लोजर में, ये इसीलिए है क्योंकि हाथी सीमेंट पर नहीं रहते जंगल में. तो हमने रबर मैट इसीलिए लगाया, जब वो हाथी सोता है तो उसका पैर को चोट नहीं पहुंचे. जो उनका चल रहा है वो हाथी को डर्माइटिस है.
डर्माइटिस क्या होता है? एक स्किन का बीमारी है। हम यहाँ आयुर्वेद का एक छोटा सा पाठशाला खोला है, जहाँ हमारे पास 4 से 5 आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है, जो सिर्फ हाथी के लिए आयुर्वेद का अलग प्रकार के जड़ी बूटियाँ से हम इनका जो सुबह से शाम इनका अलग मलम लगाते हैं। डेमो एक्सरे मशीन से ये हाथी को दिखाया जा रहा है कि डरना नहीं है, तो इसको यूज टू किया जा रहा है। तो जब हमें एक्सरे करने का जरूरत होगा तो हाथी डरेगा नहीं। तो आप तो फिर जानवरों पे काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। ये पैसे की बात है नहीं, ये सेवा की बात है, और ये बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। जैसे आपको पता है हम एक ट्रस्ट है, तो हमें बहुत सारे लोग फंड करते हैं। सेवा करने में हम कोई पिछाई नहीं रखते, हम जितना हो सके उतना सेवा करते हैं। We've just reached the elephant hospital. जी I'm told it's one of the world's biggest elephant hospitals. जी, it's the world's largest elephant hospital plus the world's most modern elephant hospital. Okay, come let's go take a look. That's our elephant hospital. It's spread over 65,000 square feet. That's our elephant restraining device. What does that mean? So this whole device was imported from the US. It's the first device in India. If there's an elephant who's not tamed, we can do the entire treatment without harming either the elephant or the human. This is acupuncture, which is currently happening. In a day, 10 से 12 हाथी का यहाँ होता है. We have 3 of the acupressure sets. And result भी अच्छा है यार. What is hyperbaric oxygen therapy? So here we do oxygen therapy for all our elephants with either skin damage. So we specially created this oxygen therapy. I think this is the first in the world for elephants, which we created here, help heal. My vet here can explain more on this. Doctor. Hello, so this is Lilavati. She is a burn victim. She had extensive burns, and when she arrived to this facility, she was in a very terrible condition. We cannot imagine the state in which she had arrived, and this is just one of the very effective treatments that she is receiving currently. आप इनके father है, he's one of the Padma Shri. How are you, Dr. Sharma? I'm very good. Yes. Elephant Man of Asia. Elephant Man of Asia. बताइए कि ये कैसे That title was given to me by Honorable Governor of Assam. तो आप तो आसाम में थे ना पहले? असम तो अभी भी यहाँ आसामीज हैं, अभी हमारे पास आ गए। यहाँ कैसे आ गए? नहीं, कंसल्टेंट हूँ मैं, आते रहता हूँ जब भी कोई प्रॉब्लम है। अभी इतना बड़ा इवेंट है, for the first time Vantara is coming to the public, no? So doctor knows that we go all across the country and we help elephants because it's not possible to get all the elephants to a facility. So your doctors go there? And doctors trained, we have more than 30 vets. So here you can see it's a specially designed elephant ambulance with a crane installed because a lot of elephants which are rescued, they can't even walk. So we need to lift them up with a crane and put them in the elephant ambulance. We have more than 20 elephant ambulances. That there's an elephant tilter. So if there's any elephant which can't walk and which we need to tilt for medicines or which we need to tilt for treatment. So how do you tilt it? It's automated. That's the machine. So it tilts. So Anand bhai, this is quite phenomenal in terms of what we're seeing and the heart and soul that you've put into building it. How much of your focus is on nature and animals, and how much is on your core business? This is my passion project. So in a day I give about at least 1.5 to 2 hours a day. And I'm a very light sleeper, so the rest goes into my core business. We have a long way forward to reach and meet my father's expectations. And for Reliance, as you know, how my father grew it from my grandfather. Now we have to make, me, my brother, my sister together, have to make my father proud. How will you make him proud? What's your vision? So, as my father has always said, that we have to do businesses for the mass, we have to do businesses for the janta. Like he came up with the idea of a 500 rupee phone, if you remember, and then he got in Jio. So now we are working on green energy. As you know, a lone man can't do much. You have to have a colleague. So we have, in Jamnagar, we have more than 50,000 colleagues. So we all are working towards an aim so that Reliance can help more and more lives, and Reliance can ease people's lives and make the world a better place. So what we saw earlier were enclosures. This seems to be the open jungle. So when ये क्या है और वो क्या? The enclosures you saw, Rahul bhai, the enclosures you saw were only the night houses. So the elephants live there in the night. In the day they roam around. So every elephant walks 20 kilometers a day, and they all have a natural habitat. So that elephant is laying down and sleeping. These elephants are playing in their thing. These elephants are enjoying their bath. So we
we try mimicking nature as much as possible. These are bore wells, so we do water conservation too, and we have created this whole plantation and a forest over 3,000 acres for the elephant. दिन में जंगल में हाथी घूमते हैं और रात को हाथी उनके घर में चले जाते हैं। जो हमने आपने देखा अभी उनका घर है। ये जो पूरा आपको एक विशाल जंगल जैसे ही इसका नज़ारा दिख रहा है, और हमने जो यहाँ एक ऐसे एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट किया है कि जहाँ जंगली चिड़िया, जंगली पक्षियाँ, जंगली नीलगाय, चीतल, हिरन और बहुत सारे विभिन्न प्रजाति के सांप भी यहाँ पाए जाते हैं। So the fascinating thing about what you're trying to do is that at a time when there's so much focus on ESG in terms of accountancy and so much focus on sustainability, in the middle of this petrochemicals refinery, which is largely perceived as being polluting, even though you try and deal with that, you've got a jungle going. So my father always said that this has to be the greenest refinery. We have planted more than 25 million trees here. My grandfather had a vision to have the world's largest mango orchard here. So my mother made that vision possible, and we have planted more than 5 lakh mango trees. The biggest mango orchard before this was Akbar's. ये वो मुल्तानी मिट्टी वाला बात है elephant. जी, मुल्तानी वाली मिट्टी वाली बात है। एक्चुअली वो मुल्तानी मिट्टी थी। ये हमारा डस्ट सैंड कहते हैं इसको। तो ये गुजरात से ही पाया जाता है, बनासकांठा से लाया जाता है। So your love for animals comes from your mom's side or your dad's side? My mother has been my biggest inspiration. My mother, since when I was a young boy, my mother always told me कि जो बेजुबान होते हैं उनका ध्यान रखना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो मैं बचपन से ही ये मम्मी का जो मोटिवेशन रहा है और मम्मी का जो साथ साथ में सलाह रहा है कि जितना हो सके उतना सेवा का भाव रखिए और जानवरों के लिए सेवा करिए, तो मैं उस हिसाब से ही चलता गया हूँ। आप सोच लो, मम्मी भी देख रही है, पापा भी देख रहे हैं, पापा के लिए भी कुछ बोल दो। पापा तो क्रिएटर है, पापा तो ये सब, उनके बिना तो ये कुछ होगा नहीं, और हम तो एक छोटा कार्य करते रहे। पापा हमारे इंस्पिरेशन है। पापा ने तो ये पूरा जहाँ आप देख रहे हो इनका रिफाइनरी, ये सब चलने का कारण उनके कारण है। What have you learned? What's the one thing you've learned from your father? So my father always tells me that work hard and never go back on your mistakes, learn from your mistakes. कभी भी पोस्टमार्टम मत करना। पोस्टमार्टम मत करना। पापा बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, सोच लो, बट ये मत पोस्टमार्टम मोड में मत आगे बढ़ो। एंड जब कुछ करना है तो भारत के लोगों के लिए करना है। जैसे कि बिजनेस भी जो होता है उससे आम आदमी का कैसे भला होगा, आम आदमी का लाइफ उससे कैसे सरल होगा, उस पर आप कंसंट्रेट करिए और तब आपका बिजनेस दौड़ेगा। तो आप कैसे करने की कोशिश? Because your focus is on renewables, right? हमारा फोकस यही है कि सोलर एनर्जी हो गया, हमारा फोकस है कि हम ग्रीन बायो एनर्जी हो गया। तो अभी जो स्टबल है उससे अगर गैस बनेगा तो बहुत सारे लोगों का पोल्यूशन भी कम होगा और गैस भी कम दाम में मिलेगा। Are you very competitive? My father has told me, concentrate on our product. No need to be हम कंपटीशन के बारे में सोचते नहीं। हम we are very self focused and हम ये सोचते हैं कि हम हमारा कैसे सबसे अच्छा करें, और competition is always good, that it makes our product better. So this is the mangoes. My dada, my grandfather, my mother planted. ये नीलगाय है? ये नीलगाय इतना है। सारा? हमारे पास हजारों नीलगाय और ये खुद आ जाते क्योंकि हमारा जो बाउंड्री है वो डायरेक्ट जो फॉरेस्ट लैंड है उसे हमने बाउंड्री नहीं किया है। तो यहाँ जानवर का माइग्रेशन होता है। यहाँ तो तेंदुआ भी दिखा जाता है। रात को अगर आप आओगे तो आप अगर 2 रात में से 1 रात में आपको तेंदुआ दिखेगा। जो हाथी है वो आके नहीं जो हाथी इसीलिए नहीं खाता क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी इतना फॉर्डर दिया है, उनको पता है कि इनका नुकसान नहीं करना। तो आपके सामने हाथी यहाँ चल रहा है ना। देखिए, जब भी आप जानवर को पालोगे, जानवर महसूस करता है कि मालिक का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो हमने आम में भी एक, आप जो ये ब्लू रंग का देख सकते हो, ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया है। तो इससे जो दीमक है वो आम पर नहीं आते। ये भी हमने यहाँ बनाया है। लगभग मम्मी ने यहाँ 5000 से 6000 औरतें रोज आकर आम का बगीचा, लोग सब आजू बाजू के गाँव के। तो आप क्या चाहते हो कि आपकी लेगेसी क्या हो? Is this animals or will it be business? What will be your legacy? देखिए, वो तो जो भगवान को मंजूर है वही होगा। हम तो हमारे खुद की लेगेसी डिसाइड नहीं कर सकते। What would you like it to करेंगे। be? Animals is not your काम. That is passion. That is only passion. That's सेवा। देखो, ये मैं सबको बोलता हूँ, ये एक प्राणी संग्रहालय नहीं बना रहा हूँ मैं, ये प्राणी सेवालय बना रहा हूँ। जो मैं मानता हूँ, हर एक जानवर में एक देवता रहता है। ये सब भगवान के, जो भगवान का देन है। ये जितने भी
प्राणियां हैं ये हम नहीं बना सकते, ये सब भगवान का देन है। तो यही सेवा मेरे लिए परमात्मा का सेवा जैसा है। तो आप कह रहे हैं कि जो मैं एनिमल्स के लिए कर रहा हूँ उससे मुझे मत जज करो, मैं बिजनेस में क्या करता हूँ, जज मी एज अ बिजनेसमैन फॉर व्हाट आई डू इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। अभी तो मैं मेरे आपको जैसे बताया कि अब तो हमें बहुत कुछ करना है, अभी हमने कुछ हासिल नहीं किया, बहुत आगे जाना है। अब तो हमने आई वुड से लेस देन 1% भी मेहनत की है। पापा जो हिसाब से आगे बढ़ते हैं हमें उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। अभी हमें अपने खुद के बलबूते पर जब हम कुछ करेंगे तब आप मुझे बोलना, हमें मेहनत करना है। आप मानते हैं कि अभी कुछ नहीं है? अभी तो हमें आगे बढ़ना है ना, बहुत मेहनत करना है। ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा कि अभी तक हमने कुछ किया नहीं, बट आई कांट से कि हमें बहुत मेहनत करना है और हमें एक टीम को लेकर आगे चलना है। एक से कुछ नहीं होगा, पूरा रिलायंस परिवार हमारा परिवार और सबको लेकर हमें मेहनत के साथ आगे करना है। मैं सबसे छोटा हूँ तो मेरे भाई से और मेरे बहन से भी सलाह लेता हूँ। कोई भी हाथी अगर जो बीमार होता है तो उनके लिए हमने एक शेड बनाया है। तो ये शेड मैं जो भी है भारत के शिल्पकार और भारत के जो कारीगर है उनसे बनवाता हूँ। आपने पूरा देखा होगा कि आई बिलीव इन मेक इन इंडिया, तो हमने ये जो है ये काठियावाड़ी शिल्पकार से बनवाया है। अभी पीएम ने बोला वेड इन इंडिया, तो आप तो शादी भी यहीं पे, पीएम ने जो बोला कि वेड इन इंडिया कि हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। हाँ। तो मेरी दादी का जन्मभूमि जामनगर, मेरे पापा और दादा का कर्म भूमि जामनगर है। मैं यहाँ पला हूँ और मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ये करें। और प्रधानमंत्री साहब ने अगर बोला कि शादी आप जितने भी हो सके उतना वेड इन इंडिया करिए, उससे बड़ा क्या चीज, खुशी की बात है हम हमारे देश में शादी करें। और हम तो हमारे जो दादी का घर है, पापा कहते हैं कि दादा का ससुराल में हम शादी का जो हमारा महोत्सव है इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। और क्योंकि जामनगर में यहीं पला बड़ा हूँ। बॉम्बे का लड़का टिक जाता है जामनगर में? आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, वो तो अभी आए हो, मैंने सुना है कि बहुत टाइम स्पेंड करते हो आप यहाँ। मैं यहाँ 28 साल में मैंने जामनगर में 15 साल बिताया है। मुंबई अलग चीज है, जामनगर अलग चीज है, दोनों घर है। फेवरेट क्या है? और काम के लिए तो मुंबई है, और घर जो है जो जैसे आपका घर जहाँ भी होगा आपका, मुझे जामनगर ही ठीक लगता है। अभी तो काम भी जामनगर में ही है, बहुत सारा काम यहाँ ही होता है। Scions of business families find it very difficult to imagine that you spend as much time as you do in Jamnagar. Once you move to the big city, no matter where you come from, whether it's an Ahmedabad or a Jamnagar, people typically tend to find it difficult to come back to wherever the original establishment was. I can't talk for others, but for myself, I find Jamnagar the place where I get eternal happiness. Not only for the animal work, but also all my employees who are creating the refinery, who are creating the new energy complex, all work here and live here. We have created a whole complex where we have more than 50,000 employees. So they all stay here and they're all part of my family. Luckily, God's grace, my fiance loves Jamnagar more than me. She is more happy in Jamnagar than anywhere else. So what does a date in Jamnagar look like for Anand Ambani? A date in Jamnagar would be walking in the forest, feeding my elephants, going in a small paddle boat with the elephants in the lake. So everything nature oriented and everything. A date also would be 4 in the morning getting a call saying there's a elephant surgery, rush there. So when these calls come, you go? Of course. For me, these are my baby. Time does not matter. So you are the youngest in your house, तो आप सबके favorite है, apple of everyone's eye. ऐसे कुछ नहीं है। अब तो apple of the eyes जो है मेरे भाई के बेटे हो गए और मेरी बहन की 2 है। बचपन में मैं सबसे ज़्यादा मम्मी पापा के अकेला रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई और बहन 4 साल बड़े थे तो कॉलेज में थे, तो मुझे 8 साल एक्स्ट्रा मिले, घर पे अकेला मिला। तो मम्मी पापा जब यहाँ सब बना रहे थे तो मैं यहाँ ही आता था। तो दोस्ती है आपके भाई बहन से या कंपटीशन भी है? कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, वो मेरे सलाहकार है और मेरे भाई तो मेरे रियल जो एडवाइजर कहते हैं। मैं मेरे भाई और बहन का हनुमान हूँ, जैसे उनका आदेश होगा मैं उस हिसाब से काम करूँगा। The Vantara Animal Kingdom Elephant Kitchen. Yes. What is this? Hello. That's Professor Petra. Namaste. Professor Namaste. Petra. Hello. She is our head of nutrition for all across GZRRC. So under her we have 40 Indian nutritionists and she's come from Germany. So what brings you here from Germany? I have found much more in India than I can bring from Germany. For example, here your apples are much more tasty than in Germany, I have to say. This is a Ragi Laddu. So Laddu was originally fed to all elephants by the Mawats. So we have our
old Mahawats. Our oldest Mahawat here is 83 years old. Okay. So they gave the recipe. Professor Petra added the minerals and ingredients which needed. So this is keep our elephants healthy. तो ये हाथी के लड्डू और उस लड्डू में क्या फर्क है? वो सेम लड्डू Same लड्डू है? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है. चखिए एक पक्का 100% चखिए. Save Dr. Petra. Yeah, It's totally 100%. safe to For the make a elephants, we variety. give different. So one day they'll get ragi, one day they'll get this, one day they'll get this, and one day they'll get this. So which one should I try? You can try which one you want. आप भी खाइए दूल्हे राजा साहब. नहीं नहीं मैं तो डाइट पर. डाइट अरे क्या बोल रहे हो? डाइट चल रहा है. न्यूट्रिशनिस्ट ने रोका हुआ है खाने से आपको? ओहो. इसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है. हम गुड़ से बनाते हैं हाथी के लिए लड्डू. और ये जो हम बना रहे हैं ये उनका जो हाथी एकदम जैसे हमारी जो 80 साल की हाथी है वो चबा नहीं सकती तो उनके लिए जूस बन रहा है. Can I try the elephant watermelon juice? Of course, everything is checked. खिचड़ी बन रही है तो यहाँ हम लोग 50 किलो खिचड़ी बन रही है, वहाँ 50 किलो खिचड़ी बन रही है. तो ये हाथी का खिचड़ी बनता है रोज. आनंद भाई ये इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ खिचड़ी? आपके लिए देता हूँ मैं थोड़ा. पक्का? हाँ दीजिए. टेस्टी रहेगा? कैसा रहेगा? एकदम टेस्टी रहेगा. आप थोड़ा खा लीजिए. मैंने जो लंच में खिचड़ी खाई थी उससे बेटर है ये खिचड़ी. इट्स वेरी नाइस. अच्छा ये वो हाथी का जूस है जो आपने वहाँ से हाथी का जूस मंगाया राहुल जी. आप एक ये बताओ आनंद भाई आपके साथ हाथी का खिचड़ी और हाथी का जूस. अमेजिंग. दिस इज लाइक लिविंग द लाइफ एलिफेंट साइज. जितना भी खिचड़ी में जो सामग्री जाता है वो सामग्री के लिए भी हमारे पशु वैद्य ने हमें समझाया है. पुराने जमाने के पशु से हम केरला से लाए थे. उन्होंने बताया तो वो हिसाब से हम खिचड़ी बनाते हैं. ये खिचड़ी सेक्शन के बाद पॉपकॉर्न सेक्शन. ये इनका ट्रीट है. ट्रीट? क्योंकि जब डॉक्टर उनको कोई दवा देती है या डॉक्टर उनका ब्लड लेते हैं या कुछ तो हाथी को कुछ ट्रीट देना पड़ता है. वहाँ वो इतनी बड़ी बड़ी रोटियां भी जो हाथी है एक हाथी दिन में 5 रोटी खाते हैं. ये हमारा ऑटोमेटिक रोटी का मशीन बनाया गया है. तो आप देखोगे कि ये रोटी खाता है एक हाथी? 5 सुबह 5 शाम को 5 बस. We're now entering the cold storage area. This is where the doctor has all her raw material from. Those apples look really fresh. This is what you're feeding the... Yes, all these apples are actually grown in Himachal, and we have a farmer who only grows organic apples. Can I try it? Yes, and these are not only used for the elephants; these are also used for all our other herbivorous animals. I see you spoke quite a bit about Sanatan and about Hindu. You study Hindu religion philosophy? Sanatan has made me stronger, and every time I'm in a difficulty, God has got me out. So personally, I've gone through many health crises, and God has always been kind enough. ये बचपन से चल रहा है. But when I was 3-4 years old, तब से हमने ये किया. कोई कभी आपका किसी ने मजाक उड़ाया कि क्या शौक है बॉस ये आपका? Whatever I like to do, I do. मजाक तो उड़ती रहती है, but I take that lightly. Does that weigh on you? What does society or what do other people think of you? Not at all. My father and my mother have given me enough confidence and faith in myself, and I believe myself. And as long as I know I'm right, and my parents know I'm right, and my brother and sister and my fiance and my close ones know, that's all matters. And I try living by my principles, which are so good thoughts, good deeds, and good sayings. My father always taught me that never ever think negative. Always be positive. No matter how bad the situation is, if you think positive, and always think that God has chosen you to do something, no matter how small or how big. If you do it with full dedication, my father said you'll succeed. मैं जब रिलायंस में लोगों से बात करता हूँ तो कई कहते हैं कि आनंद में वो धीरूभाई अंबानी वाली फीलिंग आती है, उसकी झलक दिखती है. आप ही के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ऐसा क्यों बोलते हैं आनंद? ये तो बहुत बड़ी बात है. I don't think even I'm equal to that. ये तो झलक आपको नजर आती होगी. उनको ही पूछना पड़ेगा. मुझे आपने कैसे सुना तो होगा ये. देखिए मैं मेरे बाद खुद के बारे में प्रशंसा कैसे सुनूंगा. आप पे प्रेशर है क्योंकि धीरूभाई अंबानी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में थे. आपके पिता ने जो आपके दादा ने बनाया उसको भी आया लगेगा. जैसे ये डिनेस्टी का, जनरेशन डाउन जनरेशन का प्रेशर फील करते हैं आप? बिल्कुल नहीं. मुझे ये लगता है कि हमें जो भी करना है दिल से करना है. जैसे स्ट्रिक्ट आपको है मैंने आपके कहा. पिताजी? आपसे आप से बात करते बहुत रिस्पेक्टफुल डर के बात करते. स्ट्रिक्ट है क्या आपके पापा? बिल्कुल नहीं. पापा मेरे दोस्त है. स्ट्रिक्ट से ज़्यादा दोस्त है पापा. उन्होंने सपोर्ट किया, पूरा उन्होंने इनकरेज किया? पूरा सपोर्ट किया. उन्होंने उनके बिना ये नहीं हुआ. उन्होंने खाली एक चीज़ बोला कि अगर आप कुछ कर रहे हो और सेवा का काम कर रहे हो तो सेवा को बिजनेस में मत जोड़ना. सेवा खाली सेवा होना चाहिए, एंड बिजनेस खाली
बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस में भी सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कि पब्लिक के लिए ऐसे करिए कि जहाँ पब्लिक को लाभ हो, उनको सस्ता में कुछ मिले। पिछली दफा आपसे मुलाकात हुई थी आनंद भाई, तो हम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिले थे। जी, मेरे जिंदगी का सबसे सफल दिवस वो Really? था। ऐसे क्यों? राम इतना भव्य मंदिर बना है, और वहाँ का जो वातावरण बना था वो दिन, ऐसे वातावरण तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हम सबके लिए बचपन से एक सपना रहता था कि एक दिन मंदिर होगा, और मंदिर हुआ, और वहाँ का दर्शन मिलना हमारे लिए बहुत, और वो दिन वहाँ आना, आप भी वहाँ थे, तो वहाँ का जो माहौल तो ऐसे जिंदगी में वापस कब नहीं बन सकता। मेरे जिंदगी का अब तक सबसे खुश दिवस वो दिन था। और शादी तो अभी हुआ नहीं है ना। काफी मुझे आप प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित नजर आते हैं, काफी इंप्रेस नजर आते हैं आप पीएम से। हम सब भारत के नागरिक, हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे नेता है, तो हम उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया है, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया, और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। 2014 में हम कॉलेज में थे, ब्राउन में, तो वहाँ 50-60 लोग थे। तब से और आज में तो हम सब दोस्त बात करते हैं भारत में कितना उन्होंने उन्नति ला लिया, और भारत कितना आगे बढ़ा है। So Anand bhai, when you talk to your friends at Brown University from back in your days in campus, what's the message? Like, how has India changed in your view and So their they view in the all last say 10 they never years? knew much about India. Today they say India has become a global power. Today they discuss, and the way India handled Corona, some of my friends came and they said that their health systems there failed, and with 1.2 billion people here, the way the way Corona was handled compared to the US, they were all shocked to see the Corona centers in Mumbai, to see the Corona centers in India. It was amazing. आइए। ये एक प्राचीन मंदिर है जिसको आपने रिफर्बिश किया? जब ये जमीन था, ये गांव का छोटा सा माता जी का मंदिर होता था, तो मंदिर का थोड़ा हालत खराब हो गया था, मंदिर थोड़ा टूट गया था, तो हमने मंदिर को पूरा नया बनाया। अच्छा। और ये जो पूरा पत्थर है, हमारे गुजरात में एक अंबाजी करके एक मंदिर, बहुत प्रसिद्ध देवी का मंदिर है, तो हमने पत्थर भी वहां की जगह से लाया। भगवती हे सुखी घंट कुटुंबिनी गौरी कुटुंबिनी गौरी गुडे, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, मां रम्य कपर्दिनी शैलसुते। आप अपने आप को काफी धार्मिक मानते हैं आनंद? जी, मैं बचपन मेरे घर में दादी जी और दादा बहुत धार्मिक थे। हमारे घर में सब, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा भाई बहुत बड़ा शिव भक्त है, मेरे पिताजी आप गणेश के भक्त हैं, वो शिव जी के भक्त हैं। हम सनातन में तो हम हर एक भगवान के भक्त हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। माता जी अब भी नवरात्रि पे उपवास करती है और हर 9 दिन आरती करती है, और दादी जो मेरे है वो श्री जी बाबा श्रीनाथ जी की बहुत सेवा करते, घर पे रोज सेवा करते हैं। और मेरी नानी खुद नागर ब्राह्मण है, मेरी नानी ने बहुत कुछ किया। दादा भी बहुत धार्मिक थे। हम सब जो भी है भगवान के कारण है। तो ये जो आप मुझे बातें बता रहे हैं, जो पब्लिक में परसेप्शन है आपके बारे में, वो उससे काफी अलग है, क्योंकि सोचते हैं कि लोग ये बिजनेस में ज्यादा ध्यान रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में इतना ध्यान है कि नहीं? काफी अध्ययन किया है आपने इन चीजों का? अब तक हमने लगभग 9 भागवत गीता के पाठ किए मेरे जिंदगी में। हमने ऑलरेडी 9 भागवत गीता के पाठ किए, और ये तो बताने वाली चीज नहीं होती है भाई साहब। पॉलिटिक्स में रुचि है आपकी? नहीं, जीरो? नहीं, दूर से कुछ नहीं। न्यूज देखते हैं आप? न्यूज बिल्कुल देखता हूँ, और आपका आज तक तो कौन नहीं देखता है। आप तो बहुत अच्छा आप चलाते हो, और आपका न्यूज देखने के लिए बहुत लोग खुश होते हैं कि आपको टीवी पर कब देखा जाए। मेरे यहाँ जितने भी हमारे घर पे जो स्टाफ है, सब
आज तक ही देखते हैं। तो हम सब छोटे से अभी तक हमारा आज तक, और हमारा जब बचपन में हिंदी टीचर होता था श्री रमन सर, वो हमेशा कहते थे कि हिंदी में रोज क्लास से पहले 1 घंटा आज तक सुनकर आना, और हमें पता है हमें फिर टिप्पणी देना पड़ता था। तो उस टाइम से हमें तो क्लास से ही सिखाया गया आज तक देखना है, तो उस टाइम से हम देखते थे। तो आपके जो सारे दुनिया भर से गेस्ट आ रहे हैं आपकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस के लिए, उनको आप इस जंगल सफारी पे लेके जा रहे हैं? जो सारे गेस्ट आएंगे उनके लिए जंगल सफारी नहीं है, क्योंकि ये खाली एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये हम लोग मनोरंजन के लिए नहीं करते। और मनोरंजन क्या, ये एक आपको मैंने बताया कि चिड़ियाघर मनोरंजन के लिए होता है, यहाँ हमने एक सेवालय बनाया है। तो अभी आप नर्वस है, एक्साइटेड है? दिल के अंदर की फीलिंग क्या है? दिल के अंदर की फीलिंग यही है कि जो भगवान चाहेगा वही होगा, और एक नया शुरुआत के लिए बहुत एक भगवान से आशीर्वाद और आप सब जैसे लोग से आशीर्वाद मांगता हूँ। नर्वस होने की इसमें कोई बात नहीं है। ऐसे आप ऐसे ही बोल, अब आप ऐसे डायलॉग मारे, शादी से पहले हर लड़का लड़की दौड़, शादी तो जुलाई, फिर भी प्री वेडिंग से पहले तो हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। नहीं, हमें आनंद लेना है। और रिवर्स तो हमने वही दिन सोच लिया था कि कोई रिवर्स गियर नहीं है जब मैं राधिका को मिला था। तो इससे सच में मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा, मैं नर्वस नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि आप मम्मी पापा दोनों से बहुत क्लोज है। मम्मी पापा मेरे लिए बहुत प्रेरणा है। You know, I wonder, do you feel the pressure of being an Ambani? Absolutely not. I think I'm privileged to be born in such a family. I'm privileged to have a father like my father, who has inspired not only me but thousands and thousands of others to do good work and to create industries in India. And I feel that it's mine, my brothers and my sister's duty together to ensure my father's vision is implemented. आप हमेशा अपने भाई बहन की बात करते हैं, लेकिन पूरे देश ने देखा किस तरीके से पिछली जनरेशन में एक फाइट हुई जब सक्सेशन हो रही थी। क्या आपको कहीं ना कहीं वो एक चिंता सताती है? मेरे को बिल्कुल ऐसे चिंता नहीं सताती है। मेरा भाई मेरा राम है और मेरी बहन एकदम मेरे लिए माता के स्वरूप में आते हैं, माता जी के स्वरूप में आते हैं, हमेशा मेरा रक्षा करते हैं। तो जैसे वो कहेंगे वो करूंगा, और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हो ही जाता है, इनएविटेबल, आगे पीछे लोग करा ही देते हैं कोई ना कोई। देखिए, अगर आप आगे पीछे वाले का सुनोगे तो कंपटीशन होगा। अगर हम एक दूसरे में विश्वास रखेंगे तो कंपटीशन होने का कोई चांस अभी है? ऐसी दोस्ती है? ऐसे दोस्ती, हम झूठे फेविक्विक से चिपके हुए। फेविक्विक से? जी। आप कह रहे थे कि राधिका के साथ आपको यहाँ पे जामनगर में डेट पे निकलने का शौक है। ये तो बहुत अच्छी जगह भी है शाम में डेट पे निकलने के लिए। तो who's lucky? Radhika is lucky or you are lucky? I am lucky for sure. She is the person of my dreams and I think Why is she I the am person lucky. of your dreams? क्योंकि देखिए, अभी जो मैंने सोचा था, मैं आपको सही बात बताता हूँ कि बचपन में मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। आपने ऐसा सोचा था? जी। क्यों? मैं मम्मी पापा को हमेशा बोलता था, क्योंकि मैं हमेशा अपने जानवर की सेवा में लगा रहता था। मैं इनको मिला, ये मेरी जैसे सोच है, इनका भी सेवा का भाव है, जानवरों पर बहुत प्रेम है। उससे ज़्यादा ये बहुत ऐसे मेरे साथ जितने भी कठिनाई हुई मेरे स्वास्थ्य के साथ, हमेशा एक मजबूत ताकत जैसा खड़ी रही। ये जितने चैलेंजेस आपने देखे हैं ना, खासतौर से अपने हेल्थ को लेके, ज़्यादातर लोग टूट जाते होते चैलेंजेस में। जी। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। मेरे से बहुत ज़्यादा लोग तफरीक में हैं और मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी किया अच्छे के लिए किया, और मैं लड़ा और भगवान साथ में रहा। आप जैसे बहुत लोगों का आशीर्वाद था, मेरे चाहने वाले लोग का आशीर्वाद था, मेरा परिवार, मेरे माताजी और पिताजी ने कभी मुझे ये भी फील नहीं होने दिया कि मैं थोड़ा भी बीमार हूँ। और जैसे आप बोल रहे थे, आजू बाजू वाले जो बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। देखिए, बोलने वाले का काम बोलना है, और हमें तो उनको भी यहाँ जीना है, हमें भी यहाँ जीना है, तो हम सब हाथ जोड़ के जीते। I just want to tell everyone who's watching for a sense of geographical context. So you've got that big elephant
Rescue Center, and this is your Big Cats Rescue Center. So currently we're at our Green Zoological Research and Rehabilitation Center. Okay. So this is a center for all kind of wild animals. That was only elephants. For all kind of wild animals we have rescued, rehabilitated. We are also conserving and doing endangered breeding programs here. So all the animals that we saw, all those are from different zoos in different parts of the world. So not zoos. All the animals come from circuses. All the animals come from places where they've been abused. And the animals also have come from zoos which don't have conditions or money or finances to keep them. So what's happening here? So this is one of our labs. So you can see our lab technician. So this is a 24/7 lab because you have to always keep on processing data. So what kind of research do you do over here? So we can do diagnostics. So we can do PCR testing. We can do any other medical testing. It's one of the best lab, I would say, in the country for wildlife management, and it works 24/7. Your mom built an image as a cultural czar, reviving Indian handicrafts, culture, art. Are you trying to do the same with conservation, Anna? My endeavor would be to do something like how my parents have done. They have always supported me, and I think it's their, my mom would be the happiest if I'll be able to do something like what she's done for culture, for wildlife. My aim is that endangered species, see today, every day, some species is becoming extinct. So for our next generation to see them in the forest, captive breeding is very important. So I'm sure you've been to a lot of safaris. So I want 5-6 generations also to benefit. Like how the Honorable Prime Minister reintroduced the cheetah back into the country. तो आपको लगा वो अच्छा आइडिया था चीता को साउथ अफ्रीका से इंडिया लेके आना? देखिए चीता पहले इंडिया में ही होता था, बट हंटिंग के कारण चीता का यहाँ से भाग गए, मतलब चीता खत्म हो गया क्योंकि उनको हंट किया गया। बट हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा, और ये एक बहुत बेहतरीन सोच थी कि चीता को वापस इंडिया में लाना, और ये उनका विजन था, नहीं तो ये मुमकिन नहीं था। ये चीता को हम तो भारत में 10-15 वर्ष 20 वर्ष से बात कर रहे हैं कि चीता को वापस नहीं, पर लोग कहते लाया हैं कि जाए। अननेचुरली लाएंगे तो ये सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे। देखिए अननेचुरली का तो बात है ही नहीं, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटाट ही था ये। तो जहाँ चीता पहले था वहीं हमने चीता छोड़ा है, और चीता अभी यहाँ ब्रीड होना चालू किया है। और जब भी आप बाहर गांव से कोई भी जंगली जानवर को नए जगह जाओगे, जब रीइंट्रोडक्शन होता है उसमें मोर्टेलिटी निश्चिंत है, थोड़ा तो मोर्टेलिटी होगा, बट आप ये देखिए कि चीता कितना वेल सेटल होकर ब्रीड हो रहा है वहाँ। आपने कहा कि आप गणेश जी के भक्त हैं। जी, तो यहाँ भी एक हमने दगड़ू सेठ महाराज का एक अवतार यहाँ खड़ा किया है, और ये हमारे सब आर्टिशियन जो हमारे महावत है, हमारे केयर टेकर है, ये इन्होंने बनाया है, पूरा पेपर से बना हुआ है। ये पेपर का बना है? जी, पेपर और कार्डबोर्ड, इसके लिए इंडोर रखा हुआ है। अंत में हमने पिछला हॉस्पिटल देखा हाथियों का, उसमें और इसमें क्या फर्क है? ये जो है वो खाली हाथियों का था। ये प्रकार अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर के लिए हमने ये अस्पताल यहाँ बनाया है। तो क्या आप इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज के CSR के पार्ट पे देखते हो कि जी ये एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट को अलग अलग, रिलायंस फाउंडेशन भी उसमें CSR देती है, बट ट्रस्ट को अलग अलग जगह से CSR आती है। जो जानवर प्रेमी हैं, ट्रस्ट हम भी, मेरे परिवार भी, माताजी और पिताजी का तो बहुत सपोर्ट रहा है कि हमारे पास यहाँ पूरा कार्ल स्टार्स का पूरा जर्मन मेड ऑपरेशन थिएटर है, रोबोटिक सर्जरीज भी होते हैं यहाँ। तो कितनी सर्जरी होती होंगी यहाँ पे? अभी तक हमने यहाँ लगभग 200-250 से ज्यादा सर्जरीज की है। हम जूस को भी मदद करते हैं, रेस्क्यू सेंटर्स और जो वन विभाग है उनका भी हम बहुत मदद करते हैं। वन तारा क्यों नाम पड़ा इसका? ये वन तारा जो नाम है, ये है जंगल का सितारा। हाँ। तो ये मैंने इसीलिए इसका नाम वन तारा रखा कि ये जंगल का सितारा जैसा ही है, और हम सोचे कि इधर एक जन्नत तो आपने देखा नहीं होगा और मैंने भी जन्नत नहीं देखा, तो जानवरों के लिए हमने यहाँ जन्नत बनाने की कोशिश की। आप कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो आपका चलो एक अस्पताल है, आपके पास जितने जानवर आ गए वो हो गए, लेकिन ये बाकी जूस तक पहुंचे, बाकी नेशनल पार्क्स तक पहुंचे, आनंद, उसके लिए आप क्या करें? यहाँ हम एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। जो बायोलॉजिस्ट हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, और फिर वो पूरे भारत में जाकर नॉलेज स्प्रेड कर पाएंगे। तो हमारा ये है कि ये वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनेगा, खाली वाइल्ड लाइफ के लिए यूनिवर्सिटी। ये जनरल ICU, प्राइमेट ICU, रेप्टाइल ICU, तो ये हमारे ICUs होते हैं। यहाँ हम जानवर का इन पेशेंट रखते हैं। भगवान का कृपा है कि अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, तो ये ऐसे हमारा ICU होता है।
ये तो जैसे वो कोकिलाबेन अस्पताल है वैसा अपने जानवरों के लिए एक तरीके से, वो इंसानों का है या आप जानवरों के लिए बना? हाँ जी, यहाँ हमारे अलग अलग प्रजाति के, जैसे ये बेचारा सांप घायल हो गया था, तो ये बर्मीज पाइथन कहते हैं इसको, तो ये घायल हो गया था और ये अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में, इसका टेम्परेचर भी आप देखोगे तो गर्म जैसा बनाया गया है, बहुत बड़ा। तो ये सब हमें मतलब जो थोड़े, ये कौन सा सांप है? ये है पाइथन ही है, पाइथन का प्रजाति है। ये हमारा फार्मेसी है, हम आफ्टर आवर्स में इसके फार्मासिस्ट है नहीं, बट ये यहाँ से हमारा सब जगह दवा जाता है। आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? HN फाउंडेशन रिलायंस हॉस्पिटल मम्मी ने बनाया था। हाँ। और उसी, वो एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल मुंबई में बना है, उससे हमने इंस्पिरेशन लिया। मम्मी ने खुद ईट खड़ा करके वो हॉस्पिटल बनाया था, और मैं खुद 30-35 जानवरों का अस्पताल घूमने गया, US में गया, UK में गया, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में भी। टाटा ने भी बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल मुंबई में बनाया है पालतू जानवरों के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत आभार कि वो जानवरों के लिए इतना करते हैं। सब जगह से देख देख कर थोड़ी प्रेरणा इस जगह से, थोड़ी प्रेरणा उस जगह से, और फिर यहाँ बनाया। ये जो आपने सारा बिग कैट रेस्क्यू सेंटर बनाया है, ये आप कह रहे थे कि केवल 20% कंप्लीट है, कि इसको आप अभी 4 गुना और ये जंगली जानवर का रेस्क्यू सेंटर है। अब तो हमने आपको इसीलिए, क्योंकि आपने बोला कि आपको देखना है, तो आपको एक झांकी दिखाई है। जो आपने आज देखा है वो खाली 20-30% दी हुई है, और ये रेस्क्यू सेंटर है। रेस्क्यू सेंटर बढ़ते जाता है। रेस्क्यू आपको जैसे हॉस्पिटल में है, पेशेंट्स का कितने पेशेंट्स दिन में आएंगे, कितने पेशेंट्स दिन में नहीं आएंगे, आपको तो उसका कोई अंदाज नहीं होगा। यही है। ये सब सारी आपने फैसिलिटी डिजाइन की है जी, ये बहुत एस्थेटिकली डिजाइन भी है, मतलब आपको प्रकृति से, मुझे लगता है कि यू फील वन विद नेचर। तो हमने यहाँ ये जो फैसिलिटी है, यहाँ 2 साल में ये सब झाड़ पान उगाए हैं। ये 2 साल में बना है जी, पूरा? और जैसे जो जानवर है उस हिसाब से हमने उसका जो झाड़ है, जो पान है, उस हिसाब से हमने डाला है। तो लोग आ पाएंगे देखने के लिए इसको बाद में? बिल्कुल, इसको एजुकेशन के लिए खोला जाएगा। साथ साथ में यहाँ जूलॉजिकल पार्क बन रहा है, जो खाली एजुकेशन के लिए खोला जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट, कोई बिजनेस इनिशिएटिव नहीं है। वहाँ जरूर लोग आ पाएंगे। Do you see this as at some point in time being India's #1 zoo? So I would not say I'm focused at making it a zoo. I'm focused at making it the best rehabilitation, rescue, preservation, conservation and endangered species breeding center in the world. Zoo is an old concept where animals were used for entertainment. I do not agree with that concept. So this is a little modern concept where we respect the animals and we teach people how to love animals and how to love the jungle. हम लोग इस सफ़र को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आखिर में मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप अब से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद इस जगह को और अपने ग्राफ को देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? आपके ग्रैंडफादर का विजन पूरी दुनिया ने देखा, आपके फादर का विजन, आपका विजन फ्रॉम हियर ऑन? तो मैं शॉर्ट टर्म गोल्स में मानता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा का नहीं सोचता। मैं आज कल का सोचने वाला आदमी हूँ। तो अगला 5 साल 10 साल तो आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। हमारे बिजनेस के माध्यम से या हमारे कारोबार के माध्यम से हम भारत के लिए कैसे कुछ और कर सकते हैं और भारत को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, यही हमारा एक विजन रहेगा। आनंद भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इतना वक्त दिया। आपकी ज़िंदगी के इतने अहम सफ़र से कुछ दिन पहले हम शुक्रगुजार हैं उसके। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम and making this Jab We Met so special. We're right next to a temple and this is the best place to end as well. Bhagwan ke blessings leke. I wish you all the very best. I wish Radhika all the best, and to the family as well for a journey. May you live happily ever after. Thank you, Rahul. Thank you for joining me on Thank you, Rahul. Rahul. All the best. Thank you. Thank you.